This chapter is kinematics of motion in a straight line. Chapter number 1, you can say kinematics of motion in a straight line. First of all, I will define what is kinematics. Kinematics, the study of relation between speed time graph. What is kinematics? The study of relation between speed time, velocity time, relation between speed time, relation between velocity time, relation between distance time, and relation between displacement टाइम. तो यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द definitions of speed, velocity, distance, displacement, and difference between speed and velocity, difference between distance and displacement. So first of all, what is speed? Speed, distance covered. Speed is distance covered by a moving object per unit time. Distance covered, the definition of speed, distance covered by a moving object per unit time is called speed. Normally it is represented by V. So we can say that V is equal to D over T. This is speed, distance over time. And the unit of speed is meter per second. Standard unit is meter per second, standard unit. और किलोमीटर पर आवर. अगर आपने मीटर के साथ सेकंड लेना है, अगर किलोमीटर है तो वो पर आवर, लेकिन आपको नॉर्मली मीटर और सेकंड में ही आएगा. स्टैंडर्ड यूनिट इज दिस. ठीक है. यूनिट मीटर पर सेकंड और km पर आवर. Next comes velocity. Displacement covered per unit time. You know very well speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. तो velocity में displacement को डील करेंगे, speed में हम distance को डील करेंगे. तो so displacement covered per unit time. Displacement covered per unit time. Velocity is also represented by V, S over T.
एस जो है ये भी डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफरेंस शो करने के लिए डिस्टेंस के लिए डी शो कर लें और इसके लिए एस कर लें। नॉर्मली बाज़ को डिस्टेंस को भी हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, नो मैटर, ठीक है। तो वेलोसिटी ये जो स्पीड है ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो है दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ये आपको पहले ही इन चीज़ों का पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? ओके, ये आपको पता है। नेक्स्ट कम्स डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज अ vector quantity and distance is a scalar quantity. A shortcut distance between two points. This is vector quantity. Okay. In the same way, the magnitude, what is the definition of distance? The magnitude of displacement is also called distance. Okay. इसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सलेरेशन। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एक्सलेरेशन? ओके, acceleration is the rate of change of velocity. Welcome. Welcome. Rate of change of velocity, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज़ आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो गई है। तो इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से वी ओवर टी, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपने इस चैप्टर में क्या सीखना है? देखें, स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इनके स्केचेस। अभी मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना कर दिखाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, this is displacement time graph. Time along x-axis and displacement along y-axis. Displacement along y-axis and time along x-axis. Time in second, displacement in meter. ओके, मैं यहाँ पे स्केचिंग करता हूँ, एक ग्राफ स्केच करता हूँ, आपने उसको इंटरप्रेट करना है। लेट दिस इज अ ग्राफ। This is the movement of an object. This is a horizontal line
This is an inclined line. This is inclined line, horizontal line, again inclined. अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस को 10 जो है डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10, और यहाँ पे 15. These are 3 points. 1, 2, 3, 4. These are 4 points. Actually, this graph shows the movement of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ये ग्राफ शो कर रहा है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. Anyone who can interpret this graph? Can you interpret this graph? What is this? ये क्या मैंने बनाया है? आप क्या कह सकते हैं? मैंने आपको ये बताया कि ये this is the movement of an object. एक बच्चा बताए, एक बच्चा बताए जी. मीरब आप बताएं. Equal displacement, equal development. 5 seconds velocity is constant, and from 5 to 10 seconds it is constant, and then from 10 to 15 seconds it is 5 to 10 is 0, 0 to 5 is constant, 10 to 15 is constant. क्या चीज़ कांस्टेंट? Velocity, gradient is equals to velocity. ओके, अब मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ. इधर देखें. An object starts from rest. This is rest. Time 0. Distance no covered. An object starts from rest. मैं लिखना नहीं है, आप देखें यहाँ पे सिर्फ इस स्केच को देखें. I'm explaining. An object starts from rest and covers a distance of 5 meter in distance covered. Distance covered is 10 meter within 5 seconds. Next, for the next 5 seconds, he remains at rest. क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा. ये डिस्टेंस कवर होता तो ये लाइन आगे चलती. अब डिस्टेंस कवर नहीं है. हॉरिजॉन्टल शोज दैट 5 सेकंड के लिए वो रेस्ट पे है. फॉर द लास्ट 5 सेकंड ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? द ऑब्जेक्ट कम्स बैक. ऑब्जेक्ट कम्स बैक. ये टिल्ट लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने वापस अपने वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज कमिंग बैक जी. अब यहाँ पे इस टिल्ट लाइन का अगर हम ग्रेडियंट लें तो वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी. लिख लें आप जी. ग्रेडियंट ऑफ, हम इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. पॉइंट्स यहाँ पे शो कर लेते हैं. ग्रेडियंट ऑफ लाइन ओ ए गिव्स वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल लाइन shows the object is at rest. Gradient is 0. यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है. ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी इज 0.
और gradient of BC gradient of BC also shows the velocity. Gradient of line BC gives velocity. अभी आप इतना ही देखें कि ये velocity हमें मिलेगी इसका gradient फाइंड करने से. तो दिस इज अ स्केच ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. इसी तरह अब मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो बना के दिखाता हूँ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस इज स्केच ओनली. अगेन अलोंग एक्स एक्सिस टाइम होगा, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, वी वेलोसिटी. तो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. Let this point is A, this is B, this point is C. यहाँ पे 10 है. 10 shows the velocity 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 5 है, यहाँ पे 10 है. अगेन वही उसी किस्म का स्केच बना दिया मैंने. यहाँ पे है 15. नो इंटरप्रेट दिस ग्राफ एंड मूविंग. दिस इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जी, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विद इन 5 सेकेंड इट्स स्पीड, इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. For the next 5 from O to A, it takes 5 seconds and attains a velocity 10 meter per second. And then for the next 5 seconds from A to B, this is a horizontal line. Velocity remains same. देखें ये velocity ये horizontal line है और यहाँ पे velocity जो है 10 है. इसका मतलब यहाँ से लेके फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट. हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन शोज कांस्टेंट. उसके लिए ग्रेडियंट क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, बिकॉज नो चेंज इन वेलोसिटी. और फॉर B to C for the last 5 seconds, this tilt line shows कि velocity is decreasing. ये देखें यहाँ पे velocity 10 है, यहाँ पे आएगा तो और कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम, और यहाँ पे और कम हो जाएगी, यहाँ पे आके velocity 0. ठीक हो गया. यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, स्केच से हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ. जिस किस्म का भी ग्राफ हो, देखें ये आपके पास क्लियरली इट इज़ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लें, आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड. डिस्टेंस covered in 15 seconds. So area, note it please. Area under the graph
gives the distance covered. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ये कि ये वेलोसिटी ले रहे हैं हम या इसको स्पीड ले रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ बतानी है मैंने, ये देखें एक और स्केच मैं बनाता हूँ एग्जाम्पल। लेट दिस इज एन एग्जाम्पल। सपोज करें कि ये आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ग्राफ इज दिस। इधर देखें, यहां पे ग्राफ 0 पे आ गया है और इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके नेगेटिव वाई एक्सिस में आ गया। आप मुझे ये बताएं कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे इनके पॉइंट्स शो कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब ये सी डी लाइन है, इसका तो आपको पता है कि फ्राम ए टू बी एक्सरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सरेशन है। यहाँ पे एक्सरेशन 0 है, बी सी डी एक्सरेट हो रहा है। ये लाइन सी डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? वेरी गुड। कि मूविंग ऑब्जेक्ट की पहले डायरेक्शन ये थी जी, अब लेफ्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट उसकी शुरू होगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। क्लियर? ये था कुछ कंसेप्ट आपको जो वर्कशीट नंबर 1 में होगा। किस में होगा? वर्कशीट नंबर 1 में आपको इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ वगैरह। ये होगी वर्कशीट 1। ओके, वर्कशीट नंबर 2 में क्या होगा? काइनेमेटिक्स। ये चैप्टर वही है काइनेमेटिक्स में। वर्कशीट नंबर 2 में क्या होगा? वर्कशीट नंबर 2 में कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, जो आपने पेपर 1 में पढ़ा है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अजीब सी बात लगती है नहीं? ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स। ये इधर आप समझें, ये समझें कि आपके पास शॉर्टकट है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज वेरी क्लियर टू यू इन पेपर 1 यू हैव स्टडीड। ये शॉर्टकट ये है, डी शोज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, यहां पे वी, यहां पे ए। डी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो वी हो जाएगा, और वी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएशन with respect to x, with respect to t,
वो v आ जाएगा, और v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो दैट बिकम्स एक्सलेरेशन। अब मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। दूसरा, पहले ये इसका रिवर्स प्रोसेस भी वो भी देख लें। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज हो रही है डिस्प्लेसमेंट को, जी 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 विद रिस्पेक्ट टू टी। दो ही तो वेरिएबल है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है? ये तो डिफरेंशिएशन होगी। अब मैं एरो अपोजिट साइड में बना देता हूँ। यहाँ पे वही है एक्सेलरेशन, वही है वेलोसिटी, वही है डिस्प्लेसमेंट। दिस शोज दैट एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट करोगे, इधर देखें, दिस साइन इज फॉर इंटीग्रेशन, यू नो। एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू दी होगी, एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन दिया होगा इन टर्म्स ऑफ टी। इंटीग्रेशन करोगे एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट बिकम्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये इंटीग्रेशन है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आपके पास एक रिलेशन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है आपके पास। S फॉर डिस्प्लेसमेंट 2t³ माइनस t² +2। Clearly this is a displacement time relation. We have to find the velocity time relation। इधर देखें, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से मैंने S T D से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे S से नो मैटर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, वी गेट वेलोसिटी, वी गेट जी। तो वी विल डिफरेंशिएट, क्या फाइंड करना है हमने? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, कैसे आएगी? वी विल डिफरेंशिएट दिस S विद रिस्पेक्ट टू T, वी गेट हेयर ds/dt। बताएं डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2t³ की 6t² - 2t। आप बताएं ईमान, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 0? तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। तो ds/dt क्या हमें मिला यहाँ से? ds/dt वेलोसिटी। अब आपने याद रखना है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट वेलोसिटी। तो सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्चुअली 6t² - 2t आई है। अब आगे हमें अगर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t दिया हो कि t इज इक्वल टू, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, t इज इक्वल टू 3 या t इज इक्वल टू 1 पे, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये है। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है 6 × 1² - 2 × 1, यू विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर/सेकेंड। इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ था, हमने इस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी फाइंड की है, वो 4 मीटर/सेकेंड। क्लियर? इसके बाद 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी वर्कशीट में क्या है
पूरा चैप्टर हमने पढ़ लेना इंशाल्लाह आज। वर्कशीट 3 में क्या है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यू नो वेरी वेल। वो किस लिए होती हैं? वो होती हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन you will use these 3 equations of motion. Number 1, v is equal to u plus at, where u shows the initial speed of the moving object, v is the final speed, a is the acceleration, t is time. दूसरी equation, s is equal to ut plus half at square. Third equation is v square minus u square is equal to 2as. याद रखेंगे ये तीनों इक्वेशंस आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन यू कैन यूज़ दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये भी आपने याद रखना है कि दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विल बी यूज्ड फॉर हॉरिजेंटल मोशन। हॉरिजेंटल मोशन यहाँ लिखें क्योंकि यहाँ पे ए आ गया है। हॉरिजेंटल मोशन मूविंग ऑन अ पाथ और ऑन अ रोड, हॉरिजेंटल मोशन। इन्हीं इक्वेशंस में अब वर्टिकल मोशन के लिए भी यही इक्वेशंस यूज़ होंगी। वर्टिकल मोशन के लिए हॉरिजेंटल मोशन, जी हॉरिजेंटल मोशन नहीं, वो तो आपकी क्वेश्चन बताएगा ना, क्वेश्चन में दिया होगा ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मूवमेंट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लिसन प्लीज, वर्टिकल मोशन, जी फॉर वर्टिकल मोशन जी विल बी रिप्लेस कन्वर्टेड इनटू जी। एंड व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी नहीं, 9 इसमें मैकेनिक्स में 9 नहीं होगी। इट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। यू विल टेक इट्स वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखें, नो मैकेनिक्स के पेपर में ये मिस्टेक ना करना, कवरिंग पेज पे, क्वेश्चन के कवरिंग पेज पे लिखा होता है यू विल टेक द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन के लिए जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सो दीज इक्वेशंस will become v is equal to u plus gt। आपने सिर्फ a को रिप्लेस कर देना है बाय g। और दूसरी इक्वेशन s is equal to ut plus 1/2 gt square। थर्ड इक्वेशन v square minus u square is equal to 2 gs। these 3 equations for vertical मोशन। ये देखें यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 नहीं रहेगा। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है, फॉर अपवर्ड मोशन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव, पता है कि नहीं? फॉर डाउनवर्ड मोशन जी, तो यहाँ पे दिस इज सिंपल चैप्टर जी। अपवर्ड मोशन के लिए जी की वैल्यू नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हु विल टेल बाय? नो
बताएं जी, जी की वैल्यू जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, तो जी की वैल्यू नेगेटिव 10 की होती है? हाँ जी, दिस इज़ द रीज़न, गुड, कि उसकी जब अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जितना मर्जी भी किक मारें किसी फुटबॉल को या बॉल को, आप ऊपर अपवर्ड प्रोजेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है डिक्रीज होती जाएगी और एट द मैक्सिमम हाइट उसकी स्पीड जाके ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड होगा रिलीज, कि वी आर एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट, और डाउनवर्ड आएगा तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसके लिए एक्सेलरेशन जो है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके।